Hello friends, hope you are doing good. You must have watched my earlier video lectures of kinematics. If you have not watched yet, do watch it from my channel, link given in description. We will see free fall acceleration graph concepts and then solutions to the challenge yourself questions of free fall acceleration topic, the lecture 7 video. Okay, this free fall acceleration graph is also very important with the point of view of NEET and JEE, because they will ask you questions directly either from the graph itself, or they may these graphs may form a part of the question. So the understanding of graph related to especially this free fall thing is also very important. So let's start. First we will take the case of in which a ball or any particle is dropped from a certain height from the ground level. Okay, so in this case you can see is here this is the ball which is dropped from a height, suppose h. Okay, so if anything is dropped, then its initial velocity will be 0, right? And then acceleration due to gravity is present and the ball will start to fall down. ठीक है, और ऐसे वो नीचे आके यहाँ पे इस फ्लोर पे ग्राउंड पे जाके ये टकराएगा. ठीक है, तो उसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा. इंक्रीज होते होते उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v के बराबर, जब व्हेन विल इट विल हिट द ग्राउंड. ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाने के लिए एक दो चीज बहुत ध्यान देने वाला चीज होता है. पहला, तेरा रेफरेंस पॉइंट मतलब ओरिजिन. ग्राफ में 0 पॉइंट होता है ना, ओरिजिन. इस केस में हमने ये रेफरेंस लिया है दैट दिस लाइन फ्रॉम वेयर द पोजीशन फ्रॉम वेयर द बॉल वाज ड्रॉप्ड. ठीक है, जिस पोजीशन से बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं वही पोजीशन मेरा इनिशियल पोजीशन है. दैट मींस इट इज y नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, इनिशियल पोजीशन दिस इज 0, और नीचे का डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ, वो डायरेक्शन सब पॉजिटिव होगा. मतलब कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम लेंगे तो ये इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दिस विल आल्सो बी पॉजिटिव. और वेलोसिटी जो मेरा है वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा होगा. और वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे किधर होगा, मान लो अगर बॉल यहाँ जब होता तो इसका वेलोसिटी किधर होगा, इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा. ठीक है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, राइट? तो ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए क्वेश्चंस में ये सब चीज भी देखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रेफरेंस कहाँ लिया गया है. ठीक है, अब इतना मालूम है तो इट बिकम्स वेरी इजी. जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताना है या पोजीशन टाइम ग्राफ उस पार्टिकल का बताना है, ठीक है, तो क्या है तुम्हारे पास इक्वेशन, तुमको पता है कि y माइनस वाई नॉट, वेर वाई नॉट इज द इनिशियल पोजीशन, राइट, is equal to what, ut plus half gt square. In case of constant acceleration, this acceleration is acceleration due to gravity because it is under free fall, right? So since u is 0, ये 0 है तुम्हारा टर्म, so that means what will be your answer. And in fact y naught is also 0 in your case, क्योंकि तुमने यहाँ पे इसी को रेफरेंस लिया हुआ है, इसी हाइट को, दिस द रेफरेंस, राइट? और ये y इक्वल टू h कहाँ पे है, when it reaches the ground. This means this height, जो ये पूरा हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, this height is how much, this is कैपिटल H, राइट? ठीक है, तो this equation directly becomes what, y equal to half gt square, since u is also 0 and y naught is also 0. So that means y is equal to what, it is gt square. In this case half and g both are constant, so this means this displacement is directly proportional to what, t square. Okay, now you already know that if a graph of y between t square, t raised to the power 2, is it's a parabola, right? And at t equal to 0, y is how much, it is also 0. That means this curve passes through the origin. So what will be your graph look like, it will look like something like this, right? This is position, this is time. Okay, so if you plot the graph, it will be a parabola. At t equal to 0, if you can see this point, t equal to 0, what is y equal to 0 or y not equal to 0, because initial position itself is 0. This was our reference, right? And as time increases, you can see at any time this, its displacement increases or its position changes, right, continuously. So at any time, suppose t, when it hits the ground, what is the height, what displacement is it has traveled, it has traveled h, right? So this is the maximum displacement when it hits the ground, basically. Okay, so this is the graph between position and displacement time graph, right? And this is a parabola, this is parabolic in nature. Okay, now one more thing, slope of tangent at y equal to 0, that means here at this point, if you will see at this point, if you draw a tangent here, what will be a tangent, it will be simply like this, right? It's a horizontal line passing through this point, it will touch this. Okay, since this is a parabola, that means at this point, if you want to find the velocity of the particle,
this is the initial point, right? This point is the initial point. So it will be simply differentiation of dy by dt, right? Differentiation of position with respect to time. So dy by dt. So what is dy by dt? Dy by dt is basically slope of the tangent at y equal to 0. So what will be the slope? It will also be 0 because angle of this is parallel to time axis. That means initial velocity is 0, and the case is same. Initial velocity is 0 because it was initially dropped. It was not thrown, right? So since it was dropped, its initial velocity was 0. So this is the graph for displacement and time. Now coming to velocity time. What will be the velocity time graph look like? It is very simple. Since you already know that v equal to u plus gt, this means this velocity, the velocity will continuously increase, right? When you drop a ball, तो क्या होगा? उसका वो velocity धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि it is under free fall acceleration due to gravity, तो वो बढ़ता चला जाएगा. और initial velocity कितना था? 0 था. तो since this is 0, that means v is equal to what? It is gt. This means velocity is directly proportional to time, right? That means it is directly proportional to t to the power 1. So anything, any physical quantity which is directly proportional to time or any other physical quantity, then it gives you a straight line passing through origin. Passing through origin, why? Because here it is v equal to gt. There is no other constant term. That is why it is passing through origin. So if you plot a velocity time graph, it will be a straight line passing through origin. Understood? This is very simple. Okay. Now let us see the next graph. Now here also the situation is same. You have to drop a ball from certain height h. Okay, only the reference points are changed now. What is changed is, if you see y equal to 0, initial position, this is the ground level. This is at ground level. Okay, so if the height of the ball from the ground was capital H, that means initial position, this thing, initial position of the ball was how much? It was capital H from the ground level. You're getting my point? And in this case we have taken upward is positive. This direction, upward direction, is positive. This one. Okay. So anything in the vertically upward direction will be positive. Anything in the vertically downward direction will be negative. This means this g now becomes negative, and all the velocities in the velocity will increase in this direction at any point t. If you will say the ball is here, so its velocity will be in downward direction. But since our positive direction is an upward direction, so the downward direction will be negative, right? So now how to plot the graph? Can anybody tell this? This is also very easy. See, here also what you need to write is, here y minus y naught equal to ut minus half gt square. Now somebody will tell me that why you are taking minus half gt square. The ball is dropped from certain height and it is going downward. So we know that the equation is y equal to ut plus half gt square. सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है. लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है ग्राफ बनाने का, ठीक है. ग्राफ में रेफरेंस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और तुम रेफरेंस क्या ले रहे हो, किस तरफ पॉजिटिव ले रहे हो, किस तरफ नेगेटिव ले रहे हो, इट इज अप टू यू. ये तुम्हारा चॉइस है, ठीक है. तो सिंपल सी बात है कि इस केस में क्या करना है, उस चीज को समझो अच्छे से. y माइनस वाई नॉट इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसलिए क्योंकि g का जो वैल्यू है वो डेट वी हैव टू टेक नेगेटिव, बिकॉज g का डायरेक्शन जो है वो नीचे है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है, ऊपर है. इसलिए g को किधर लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा, ठीक है. उसी तरह यहां पे देखो, जब ये y माइनस वाई नॉट इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, तो इस केस में y इक्वल टू बेसिकली y क्या है, y इज पोजिशन ऑफ द दिस बॉल एट एनी टाइम t. समझ में आ रहा है? तो एंड कहां से, किस पॉइंट से y का डिस्टेंस अब मेजर हो रहा है, ये कोई बता सकता है? ये मेजर हो रहा है नीचे से, यहां से इस पॉइंट से y मेजर हो रहा है, ठीक है. तो बेसिकली क्या है, y इक्वल टू वाई नॉट, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वाई नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. क्यों? क्योंकि u तो 0 था, ये दिस गेट्स कैंसल्ड, ठीक है. तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बना, y इक्वल टू वाई नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. कहने का मतलब है कि ये लॉजिकली होना भी चाहिए था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये पार्टिकल क्या होगा, ये नीचे आता जाएगा, है ना. तो आते आते जब ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ग्राउंड लेवल पे जाके ये हिट करेगा जब, ठीक है, तो उस केस में उसमें y का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है. तो यानी कि y का वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जाना चाहिए,
राइट। समझ में आ रहा है? इनिशियली y कितना था, अगर t इक्वल टू जीरो, अगर इस इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में इफ यू पुट t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या होता है, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, तो y इक्वल टू क्या बचता, y नॉट, मतलब ये y जो था ये y नॉट हो गया, इनिशियल पोजीशन तो है भी y नॉट इक्वल टू h है। तो समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये सब चीज में भी तुमको घुमा देगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुमको डायरेक्शन देखने में बता रहे थे कि प्लस माइनस कैसे लेते हैं और यहाँ पे क्यों लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो इनफैक्ट इस केस में भी क्या आएगा, y जो जनरल इक्वेशन है y का, डेट कम्स टू बी कैपिटल H जो इनिशियल उसका हाइट था माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो y इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज अगेन प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, राइट। बट सिंस अ कांस्टेंट टर्म आल्सो इज प्रेजेंट, h कैपिटल H भी प्रेजेंट है ना, t इक्वल टू जीरो पे, अब y इक्वल टू जीरो नहीं है, t इक्वल टू जीरो पे y का वैल्यू कितना है, h है, राइट। तो दैट मीन्स इट विल बी अ शिफ्टेड पैराबोला, ठीक है। अभी देखो ये शिफ्टेड पैराबोला दिखता कैसा है, इस तरीके का, मतलब उसका वर्टेक्स जो है पैराबोला का, इट इज शिफ्टेड टू अनदर पॉइंट, कहाँ, ये देखो कैपिटल H पे, ये t इक्वल टू जीरो है ना, दिस इज t इक्वल टू जीरो पॉइंट, t इक्वल टू जीरो पे उसका वो कहाँ है, इनिशियल पोजीशन, t इक्वल टू जीरो पे, मतलब ये मेरा रेफरेंस है ग्राउंड, और वो है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट मेरा क्या है, कैपिटल H, समझ गए। तो t इक्वल टू जीरो पे वो कहाँ था, कैपिटल H पे था, तो वही चीज दिखाए हैं यहाँ पे, t इक्वल टू जीरो पे कैपिटल H पे है, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वो नीचे जाता जाएगा, तो ये वाला इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस घटेगा, देखो इस टाइम पे यही यहाँ है, फिर कुछ देर के बाद या इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये घट रहा है कंटिन्यूअसली, जैसे जैसे वो नीचे आएगा h से कम घटता जाएगा, तो वही दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा h विल रिड्यूस, राइट। और एक किसी टाइम पे आके इसका जब ये ग्राउंड पे आके हिट करेगा तो y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे बेसिकली y इक्वल टू जीरो, कब, जब वो ग्राउंड पे हिट कर जाएगा तो y इक्वल टू जीरो हो जाएगा, समझ गए। तो यही चीज बताना था इस केस में कि रेफरेंस जब चेंज कर देंगे तो हमारा वैल्यूज क्या होगा, समझ गए। और यहाँ पे भी सेम चीज है कि स्लोप ऑफ टैंजेंट एट y इक्वल टू एच, यहाँ पे अगर y इक्वल टू एच पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा, ये होगा टैंजेंट, करेक्ट। तो इस टैंजेंट का स्लोप कितना होगा, जीरो, बिकॉज इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, तो tan जीरो इज जीरो, है ना। तो इसका इस टैंजेंट का स्लोप कितना हुआ, जीरो, तो दैट मीन्स चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इसका अगर टैंजेंट का स्लोप निकालोगे तो व्हाट डज इट गिव, इट गिव्स यू वेलोसिटी, तो दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो था भी क्योंकि उसको ड्रॉप किए थे हम, तो दैट इज व्हाई इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें एक और चीज क्या रह गया, वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम बहुत ईजी है वैसे, लेकिन एग्जाम में तुमको ये गलत करा देगा, इस ग्राफ को ऐसे ना देके अगर तुमको ऐसे पलट देता, ये सिंपल दे देता ये चीज ऐसा, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट्स को हम देखें ये भी आंसर मार के आ जाएंगे क्योंकि ये तो देख रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, इसके रेफरेंस के हिसाब से हमें बात करना है। तो हम क्या बात करेंगे ये बताओ मुझे, यहाँ पे क्या बात करेंगे ये समझो। यहाँ पे होगा v इक्वल टू क्या, u माइनस जी टी, माइनस क्यों, क्योंकि g का डायरेक्शन नीचे है और मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, लेकिन चूंकि u जीरो है तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली माइनस ऑफ जी टी, समझ गए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा t, और क्योंकि लेकिन अभी भी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, दैट मींस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन कैसा होगा ये समझो, चूंकि v इक्वल टू माइनस जी टी है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू किधर बढ़ाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा इस तरफ, क्योंकि v अब नेगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा डायरेक्शन ऊपर का पॉजिटिव है और नीचे का डायरेक्शन मेरा क्या है, नेगेटिव है। तो वेलोसिटी का इसका डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, दैट इज वाई ये ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ना कि इस तरह का, मतलब ऐसा ऑप्शन में रहेगा बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज द करेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी उसका नेगेटिव में आना चाहिए, तो इसलिए ग्राफ नीचे आएगा इस वेलोसिटी वाला और इस साइड में टाइम एक्सिस होगा। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट ग्राफ। देखो अब ड्रॉप करने का देख लिए, ऊपर से नीचे जब जा रहा था, अब हम मुझे क्या सेकंड केस देखना है कि अगर बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मान लो कोई एक बॉल है जिसको हमको ऊपर फेंकना है, तो ऊपर फेंकना है मतलब उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके फेंकना होगा u, जब नीचे से ऊपर फेंकना है तो कुछ वेलोसिटी मुझे देना होगा, तब तो वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ना अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। और इस केस में हमने ऊपर के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव माना है, ठीक। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चूंकि नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो इट विल बी नेगेटिव, ठीक। और रेफरेंस जो मेरा है y नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज एट द ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल, और ये मेरा रेफरेंस है, ठीक है। तो क्या होगा, ये बॉल धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा और इसका वेलोसिटी क्या होगा, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी विल डिक्रीज, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है,
तो वो कंटिन्यूसली रिड्यूस करता रहेगा उसके वेलोसिटी को, और जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा यहाँ पे तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो मालूम है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाता है, ठीक है। और उस समय उसका हाइट कितना हो जाएगा, h। तो दिस इज द फाइनल पोजीशन कैपिटल H। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब इजी है। अब मान लो तुमको पोजीशन टाइम निकालना है तो फिर क्या लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है और मेरा डायरेक्शन ऊपर का पॉजिटिव है, ठीक। तो y माइनस, और देखो इस केस में अब क्या होगा कि यू हैव टू रिटेन u, u यहाँ जीरो नहीं है, और u का डायरेक्शन क्या है, u ये यहाँ पे जो u है इसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि u का डायरेक्शन किधर है, ऊपर, और मेरा ऊपर का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो डेट इज वाई y माइनस वाई नॉट इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और y नॉट इज जीरो। y नॉट वी कैन रिमूव बिकॉज ये हमारा रेफरेंस जो था y नॉट वॉज जीरो, ठीक है। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ पे u इज नॉट जीरो, तो y इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कैसा बन रहा है, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो जब भी सेकंड डिग्री इक्वेशन बन गया तुम्हारे पास तो दैट विल डेफिनेटली बी अ पैराबोला। ये तो अब तुम अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। देखो मैथ्स वाले तो ये सब चीज पढ़ेंगे ही, उनको तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं है ग्राफ में। जो मेडिकल वाले भी हैं, जो नीट का तैयारी करेंगे, उनको छोटा छोटा चीज याद रहना चाहिए। जैसे वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, सिंगल डिग्री मतलब टी टू द पावर 1 तो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर टी टू द पावर 2 है तो इट विल बी अ पैराबोला। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हियर ऑल्सो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज अ पैराबोला। लेकिन अभी ये पैराबोला होगा कैसा, क्योंकि ये यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो इसका जब पैराबोला ड्रॉ करोगे तो ये कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। अब ये एक्सप्लेन, ये समझो ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है। ये ग्राफ ये बताना चाह रहा है कि t इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पे इसका पोजीशन क्या था, जीरो था। यदि यहाँ पे देखो t इक्वल टू जीरो पे y नॉट इज जीरो, राइट, उसी टाइम तो हम फेंकेंगे उसको। लेकिन वहां पे वेलोसिटी उसका जीरो नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ इसका है u। अब इस ग्राफ से अगर हम तुमको बोलते हैं कि t इक्वल टू जीरो पे अगर वेलोसिटी बताने, तो कोई बता पाता है इस चीज को, हाँ या ना, आराम से बता पाता। क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट पे और उसका स्लोप निकाल लेना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते तो वो टेंजेंट कैसा दिखेगा, टी इक्वल टू जीरो पे। टी इक्वल टू जीरो पे सिंपल है ना यार, यहाँ पे ये ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे, तो ये कुछ एंगल बनाता इससे टाइम एक्सिस से, ठीक है। तो इट इज नॉन जीरो मतलब पॉजिटिव, राइट, एक्यूट एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज में है, तो इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो डेट मीन्स वेलोसिटी, उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, डेट इज नॉट जीरो, तो होना भी चाहिए था ना। अगर इनिशियल वेलोसिटी रहेगा नहीं तो वो ऊपर जाएगा कैसे, समझ गए। तो दो चीज यहाँ तक तुमको पता चल गया। फिर क्या हुआ, जैसे से टाइम बढ़ेगा, जैसे से टाइम बढ़ना स्टार्ट होगा तो इस ऑब्जेक्ट, इस बॉल का हाइट बढ़ना स्टार्ट होगा ना हर टाइम पे। अभी यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर फाइनली ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, समझ रहे हो। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ है उसका, देखो इस पॉइंट पे है, इस टाइम पे आके, इस टाइम पे आएगा जब तो ये अपना मैक्सिमम हाइट पे होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ये ग्राफ यही बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका पोजीशन बढ़ रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। और किसी एक टाइम पे आके इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट ऑफ h, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए था, जीरो। अब ग्राफ से तुम हमको बताओ, ग्राफ में तुमको पता चल रहा है कि वेलोसिटी जीरो है, एकदम पता चल रहा है। क्यों, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये टेंजेंट का स्लोप कितना है, जीरो। तो टेंजेंट का स्लोप जीरो है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना है, जीरो, होना कितना चाहिए था, जीरो। तो आ गया यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी जीरो, समझ रहे हो। तो देखो ग्राफ से कितना सारा चीज इंटरप्रेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होना स्टार्ट होगा, अगर इसके बाद का ग्राफ हम देखें, यहाँ के बाद का, इस टाइम के बाद का, अगर ये मान लो t1 था कोई टाइम बीच का, तो t1 से लेके t के बीच का आप देखेंगे तो अब क्या हो रहा है आगे, बताओ क्या हो रहा होगा। बॉल अब क्या होगा, अब नीचे आना स्टार्ट करेगा, नीचे आते आते आके कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा, फिर से वापस जीरो पे। तो वही चीज बता रहा है ये। अब देखो, अब इसका बॉल का हाइट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो अब वो नीचे आ रहा है बॉल, ठीक है। तो उसका ग्राउंड लेवल से हाइट क्या हो रहा है, घट रहा है कंटिन्यूअसली, है ना। और घटते घटते जब ये आके इस पे टकराएगा जैसे ग्राउंड पे, तो इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे देखो आके जीरो हो गया एक टाइम पे आके, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था बेसिकली, ये समझना इस ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पर्पज है, एक डायरेक्टली या तो तुमसे ग्राफ का क्वेश्चन पूछ ले, वहां पे तुमको ये काम आएगा। सेकंड, ऐसा क्वेश्चन आएंगे जैसे जो हम तुमको क्वेश्चन दिए थे लास्ट चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन में, उसमें ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। तो ग्राफ से भी तुमको देख के समझ जाना है कि ग्राफ में से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसके बाद क्या इक्वेशंस लगाएंगे तो क्या आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो वैसे अभी आगे जब उसका सॉल्यूशन बताएंगे तो तुम वो समझ जाओगे वो भी चीज को।
अब इसी में ये तो हम तुमको बता दिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी विल बी जीरो, सो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट एच इज जीरो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये हमेशा तुम लोग को याद रखना चाहिए। खास करके फ्री फॉल एक्सेलरेशन का जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो एकदम मूल मंत्र यही है, एक उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है, और उस सेगमेंट, जो भी सेगमेंट के बारे तुमको जो जो पता है, उस सेगमेंट का इनिशियल वेलोसिटी अगर पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन तो तुमको हर समय पता है कि वो जी होता है, ठीक है, तो उस सेगमेंट के बीच, दोनों के बीच में इनिशियल और फाइनल में देख लो कि क्या क्या तुमको मालूम है, और उसके बाद अपने इक्वेशंस लगाते जाओ। और जो इक्वेशन तुम्हें हर समय नोन होते हैं वो ये होते हैं कि अगर नीचे से बॉल को ऊपर फेंका गया है तो वो मैक्सिमम हाइट जब रीच करेगा तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे कितना होगा, जीरो, ठीक है। या एक और तुमको जो मालूम होता है वो क्या है, अगर कोई बॉल को अगर ड्रॉप किया गया है, ऊपर से ड्रॉप किया गया, फेंका नहीं गया है, ठीक है, अगर ड्रॉप किया गया है तो दैट मींस उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, हमेशा इट विल बी जीरो, ठीक है। तो और बाकी और इसमें कुछ करना ही नहीं है, बाकी वही उसको सेगमेंट से ब्रेक करके यही सब इनिशियल फाइनल लगाओ, इक्वेशन तुम्हारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा, ठीक है। एनीवेज, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, इसमें भी सेम चीज, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, माइनस यू तो इसमें रहेगा ही कांस्टेंट, माइनस जी टी क्यों, क्योंकि वही अगेन g इज वर्टिकली डाउनवर्ड और मेरा ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, दैट मींस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन कैसा होगा ये समझो, ये स्ट्रेट लाइन इट विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट है u, इट इज नॉट जीरो, राइट। तो बट एट t इक्वल टू जीरो, अगर t इक्वल टू जीरो पे देखते, यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पे, तो उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए था, u, ये वाला चीज है ना, तो यही है v इक्वल टू यू, तो यही आ रहा है यहाँ पे देखो, एट t इक्वल टू जीरो v इक्वल टू यू, और वो उसका वेरिएशन अब कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, और फाइनली जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, देखो घट रहा है, कंटिन्यूसली घट रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, घटना भी चाहिए था क्योंकि ये बॉल ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखो वेलोसिटी घट रहा है ना, और जैसे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा किसी टाइम पे, वहां पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट आया तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। बात समझ में आ रहा है मेरा, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है तो तुम निकाल लिया आराम से, और यही मान लो यही सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहता है और बोलता यही ग्राफ रहता, ठीक है, और तुमसे पूछता कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो क्या करते, बताओ, कोई बता सकता है, कि अगर वेलोसिटी टाइम का ये वाला ग्राफ दिया रहता है, यही यही चीज, और अगर पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो कोई निकाल सकता था, आराम से निकाल सकता था, कैसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का अगर एरिया निकालेंगे तो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, तो इसका एरिया निकाल लो, यहाँ का ये पूरा एरिया निकाल लो, तो वो मैक्सिमम हाइट आ जाता तुमको, ठीक है। तो ग्राफ के साथ भी तुम्हारे साथ वो ऐसे ही खेल सकता है, आईआईटी और नीट तो खेलता भी है, तो ये देगा तो तुमको ईजी होना चाहिए, अब तुमको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ द चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चंस ऑफ लेक्चर 7 फ्री फॉल एक्सेलरेशन। This is a solution to challenge yourself question first of lecture 7. A single supporting the single cable supporting an unoccupied construction elevator breaks when the elevator is at rest at the top of a 120 meter high building. तो देखो फिगर हम तुमको बनाने हमेशा बताए हैं, तो ऐसा हम फिगर बना लिए, ठीक है। ये h हाइट है 120 मीटर, वहां पे एक एलिवेटर है, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है दिस इज एलिवेटर, ठीक है। तो वो ब्रेक होता है, वहां से गिर जाता है, तो गिर रहा है मतलब उनका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो। अब पूछ रहा है विथ व्हाट स्पीड डज द एलिवेटर स्ट्राइक द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग इज इट फॉलिंग, मतलब यहाँ से यहाँ जब आके ये टकराएगा तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, और कितना टाइम के बाद ये आके नीचे आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल। लेट द स्पीड ऑफ एलिवेटर बी वी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो तुम्हारे पास इक्वेशन तुमको पता है, चूंकि ये नीचे जा रहा है, नीचे का डायरेक्शन तुमने पॉजिटिव ले रखा है, और जी का भी डायरेक्शन नीचे की तरफ पॉजिटिव होता है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी कैपिटल एच, u कितना है इनिशियली, जीरो, तो हटा दो इसको, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 120, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट v इक्वल टू 28√3 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है, तो इसको तुम स्क्वायर रूट में भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक। नेक्स्ट, लेट द टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू हिट द ग्राउंड बी टी, तो आराम से निकाल लो, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्यों, v अभी तुम कैलकुलेट कर चुके हो यहाँ से, u जीरो है, g का वैल्यू मालूम है, तो सबको रख दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 4.95 सेकेंड, ठीक है। अब आगे बढ़ो, what is its speed when it passes halfway point on the way down, मतलब क्या, halfway point मतलब कितना हाइट गिर गया है यहाँ से यहाँ तक, it is how much, h by 2, h कितना था 120, तो ये कितना हो गया 60 मीटर, तो ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है यार। एंड हाउ लॉन्ग हैज इट बीन फॉलिंग व्हेन इट पासेस द हाफवे पॉइंट, वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपली वही, लेट द स्पीड ऑफ द एलिवेटर बी v1, जब वो अपना हाई हाफवे पॉइंट क्रॉस कर रहा था, तो ठीक है, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h by 2, कैपिटल h by 2, राइट। तो यहाँ पे u तुम्हारा जीरो था, तो उसको हटा दो, सबका वैल्यू रख दो, तो v यू विल गेट 14√6, इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट v इक्वल टू 34.3 मीटर पर सेकेंड, समझ गए, ठीक है।
अब इसमें और एक और चीज क्या पूछा है कि व्हाट इज द टाइम, तो टाइम कैसे निकालोगे, वो भी सिंपल है। लेट द टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू क्रॉस हाफवे पॉइंट BT1, तो V इक्वल टू यू प्लस GT1, यू 0 था, V तुमको पता है यहाँ से जो निकाले हो 34.3, यहाँ रख दो 34.3, इसको सॉल्व कर लो तो T विल बी 3.5 सेकेंड, मतलब 3.5 सेकेंड में वो हाफ डिस्टेंस तक आ गया होगा। ठीक है, एनीवे इसमें एक चीज समझने वाला बात है जो हम तुमको यहाँ पे विजुअलाइज कराना चाहते हैं। क्या, देखो ये हाफ डिस्टेंस जो था यहाँ से यहाँ h/2, इसमें आने में इसको टाइम कितना लगा, 3.5 सेकेंड, यही लगा। और पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में, मतलब यहां से लेके ये पूरा ऊपर से लेके जमीन में हिट करने में, इसमें कितना टाइम लगा, इट इज 4.95 सेकेंड। समझो बात को, 4.95 है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली मान लो 5 सेकेंड मान सकते हैं। ठीक है, तो ये लगा है 5 सेकेंड। एक चीज तुमको कोई दिख रहा है यहाँ पे कि ये हाफ हाइट तक आ गया है 3.5 में, 3.5 सेकेंड लगा। बाकी हाफ यहां से लेके यहां आने में इसको कितना टाइम लगा, 1.5 सेकेंड लगा, लगा ना। मतलब पहला हाफ में जितना उसको टाइम लगा था उससे आधा से भी कम लगा उसको सेकंड वाले हाफ में। कोई बता सकता है ऐसा क्यों, ये सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इसका कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। तो जब इस पॉइंट पे आया था हाफ पॉइंट पे, उस समय उसका कुछ वेलोसिटी था, अब वेलोसिटी और जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी अगर बढ़ता चला जा रहा है तो वो टाइम क्या होगा, कम लगेगा ना फिर उसको बाकी वाले चीज को ट्रैवल करने में, इसीलिए ये टाइम इस तरीके से आया है। ठीक है, ये हम तुमको बस विजुअलाइज कराना चाहते थे, है ना। चलो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन सॉल्यूशन टू चैलेंज योरसेल्फ, क्वेश्चन ऑफ लेक्चर 7। फिगर शो द स्पीड v वर्सेस हाइट, ये वेलोसिटी टाइम नहीं है भाई, ये ध्यान रखना, वेलोसिटी वर्सेस हाइट का है बॉल का, ऑफ अ बॉल टॉस डायरेक्टली अपवर्ड अलोंग y एक्सिस। ठीक है, समझ गए। डिस्टेंस d, ये d जो 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, इनके बीच का डिस्टेंस है 0.4 मीटर। ठीक है, द स्पीड एट हाइट ya इज va, ये देखो ये ya जब पे था उस समय उसका वेलोसिटी था va, और जब ये yb पे आ गया उस समय इसका वेलोसिटी हो गया 1/3 va। तो व्हाट इज स्पीड va, बहुत सिंपल, इसमें देखो अभी ग्राफ को देखेंगे कैसे, ये समझ लो। देखो t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे देखो t इक्वल टू 0 पे उसका कुछ वेलोसिटी दिख रहा है तुमको, t इक्वल टू 0 नहीं, जब इसका पोजीशन 0 पे है यहाँ पे, तो इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिख रहा है ना, ये दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, राइट। फिर जैसे जैसे इसका हाइट बढ़ रहा है, y इज द हाइट, राइट, तो जैसे हाइट बढ़ रहा है उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली, है ना। देखो यहाँ से यहाँ देखो ना, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। जब इस पॉइंट पे पहुंच गया तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 1/3 va, और फाइनली जब ये जमीन पे आके टकरा गया तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0। बात समझ में आ रहा है मेरा, जमीन पे आके नहीं, सॉरी, वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो इसका अगर फिगर बनाते हैं हम, तो फिगर हमारा कैसा बनता, यहाँ पे देखो फिगर, ग्राउंड लेवल से हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंके, ठीक है, ऊपर की तरफ, एंड दिस इज माई इनिशियल रेफरेंस पॉइंट, दिस इज 0। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, u, मतलब कुछ है वेलोसिटी, वही है ये यहाँ पे जो, एक मिनट रुको, यहाँ पे जो वेलोसिटी था, दिस इज द वेलोसिटी u जो इसके पास यहाँ पे है इनिशियली, y इक्वल टू 0 पे, यही लाइन हमारा, दिस इज y, बेसिकली दिस इज y इक्वल टू हाउ मच, 0। ठीक है, अब ये धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो जब मान लो वो a पॉइंट पे पहुंचा, a पॉइंट मेरा कहाँ है, ये ya, ये जो ya आ रहा है, ठीक है, मतलब ya हाइट पे पहुंचा, तो ये हम a पॉइंट बना लिए। उस समय इसका वेलोसिटी कितना था, va, तो यहाँ मार्क कर लिए उसका va। ठीक है, अभी फिर ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा होगा। फिर जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा YB, तो उस समय वेलोसिटी कितना है, 1/3 भी है। दोनों ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी दिया हुआ है ना, ये डी। ठीक है, उसके बाद ये बी के बाद थोड़ा और ऊपर जाएगा, जब मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बहुत सिंपल है बनाना, क्यों, ये सेगमेंट को सिर्फ देखो, ए बी सेगमेंट को, यहाँ पे यहाँ ए बी सेगमेंट को, ए बी सेगमेंट में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, VA, U नहीं है। इस ए बी सेगमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी VA है, U नहीं है। ठीक है, यही हम समझाना चाह रहे थे कि सेगमेंट वाइज ब्रेक करो और आराम से बनाओ। तो VA है, और फाइनल कितना है, 1/3 VA। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, G। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसका, D। तो इतना सारा चीज तो पता है यार, तब तो आराम से निकाल लोगे, तुरंत निकल जाएगा। क्या करना है, सिंपल से बताओ, फॉर्मूला लगा दो। क्या है फॉर्मूला, ड्यूरिंग हाइट AB इक्वल टू D जो होगा, इनिशियल वेलोसिटी इज VA, जो अभी हम तुमको बताएं,
एंड फाइनल वेलोसिटी इज कितना 1/3 भी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन तुमको पता है ना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gy, जब भी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो ये इक्वेशन होता है मेरा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड इज पॉजिटिव। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gy, तो v कितना है v/3, तो v स्क्वायर बाय 9 हो गया, va स्क्वायर बाय 9 हो गया, है ना, और u स्क्वायर कितना था va का स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच 2 इंटू 9.8 इंटू डी, ये जो डिस्टेंस डी दिया हुआ है यही तो, इतना ही हाइट तो गया ना इस सेगमेंट में, ए बी हाइट कितना है d है ना, तो बस लिख दो। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, इसको सॉल्व करोगे va स्क्वायर को इधर ले आओ, इसको सॉल्व करो 8v स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 196/25, तो va का वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम टू बी 2.97 मीटर पर सेकेंड। वेरी इजी, समझ गए। तो खाली ये दिखाने के लिए था कि ग्राफ इतना बड़ा दे दिए ताकि लोग स्टूडेंट्स ग्राफ समझ ही ना पाए, और ग्राफ देखेंगे भाई ये क्या पूछ दिया, ये हमसे नहीं बनेगा, लेकिन कितना इजी था समझ रहे हो, इसलिए हम बताएं कि ग्राफ से वो कुछ भी पूछ सकता है, डायरेक्टली ग्राफ भी पूछ सकता है या फिर ग्राफ से रिलेट करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो दिस वाज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और ये बहुत इजी क्वेश्चन था एक्चुअली, राइट। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिस इज ऑल्सो सॉल्यूशन टू चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन ऑफ लेक्चर 7। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। अ बॉल इज शॉट वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट, ठीक है, वहां का हमको अनदर प्लैनेट का मालूम नहीं है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अ प्लॉट ऑफ y वर्सेस t फॉर द बॉल इज शोन, ये देखो y वर्सेस t का ग्राफ है, ये y है ये t है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे y कितना है 0 है, राइट। तो जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉल का हाइट बढ़ रहा है, मतलब जमीन से नीचे की तरफ फेंके, ठीक है। और उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा कि नहीं, कोई ग्राफ देख के बता सकता है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा या नॉन जीरो होगा? ऑब्वियसली नॉन जीरो होगा। यहाँ पे स्लोप बना लो ना यार, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना लो, तो टेंजेंट का कुछ स्लोप आ रहा है ना, तो दैट इज वाई वो नॉन जीरो होगा, राइट। ठीक है, एनीवेज वो तो ऑब्वियस है ना कि बॉल ऊपर फेंक रहे तो कुछ स्पीड से ही फेंकेंगे। तो अ प्लॉट ऑफ y वर्सेस t ऑफ द बॉल इज शोन वेयर y इज द हाइट ऑफ द बॉल अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड t इक्वल टू 0 एट द इंस्टेंट द बॉल इज शॉट, t इक्वल टू 0 पे बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है। द फिगर्स वर्टिकल स्केलिंग इज सेट बाय वाई इक्वल टू 30 मीटर, ये वाई जो है ये वाला लाइन जो है दैट इज 30 मीटर्स, मतलब अपने काम का यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, राइट, क्योंकि बॉल यहीं तक तो जा रहा है ना, मैक्सिमम हाइट तो यही है। ये कितना डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 5 क्या है, मतलब ये वाला जो हमारे जो काम का चीज़ है वो डेट इज बेसिकली 25 मीटर्स, ठीक है। What are the magnitude of the free fall acceleration on the planet and initial velocity of the ball, मैंने दोनों चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फिगर बनाओगे तो ऐसा ही कुछ बनेगा ना, ये इनिशियल वेलोसिटी u से कुछ ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, और इसमें एक कंटिन्यूसली a होगा, इट्स नॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बट इट इज सम एक्सेलरेशन जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। जैसे अपने अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वहां पे भी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा, बट दैट विल बी ऑफ सम डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। तो हम उसको इन जनरल a मान लिए, और वो क्या हो रहा है कि वो मैक्सिमम हाइट b पे पहुंच जाएगा जब उसका मैक्सिमम हाइट मेरा कहाँ है, ये पॉइंट है मैक्सिमम हाइट का, और इस समय टाइम कुछ कितना हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा, तो दिस टाइम इज हाउ मच, दिस इज 2.5 सेकंड, यानी 2.5 सेकंड में वो अपना मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना होता है 0, यहाँ तक भी बता सकते ना यार, टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो ये टेंजेंट का स्लोप कितना होता है 0, तो स्लोप 0 दैट मीन वेलोसिटी इज 0 एट द हाइएस्ट पॉइंट, ठीक है। और 25 मीटर तुम निकाल ही चुके हो, तो अब तुमको उसका मैक्सिमम हाइट पता चल गया, ये वाला चीज जो मैक्सिमम हाइट है ये तुमको मालूम चल गया कि दिस इज 25 मीटर्स, और ये किस टाइम पे पहुंचा, t इक्वल टू 2.5 सेकंड्स पे, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन में कुछ रह गया क्या, सब चीज तो मालूम है तुमको। लेट द फ्री फॉल एक्सेलरेशन बी a ऑन द प्लैनेट एंड इनिशियल वेलोसिटी बी u, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल इज 25 मीटर्स इन 2.5 सेकंड, बस यही दो वैल्यू हमें इस ग्राफ से जो मिला y और t के ग्राफ से, ठीक है। तो अब आगे इसको बना लो, तुम्हारे पास इक्वेशन तुमको पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ay होगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मोशन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिए तो नीचे एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा उसका 0 जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, और u कुछ है यू स्क्वायर माइनस 2a इंटू 25, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 50 है, यहाँ से एक रिलेशन तुमको आ गया। दूसरा तुमको टाइम पता था ना कि t इक्वल टू 2.5 सेकंड पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, तो दूसरा इक्वेशन लिख लो v इक्वल टू यू माइनस ए टी, अगेन v इज 0, तो 0 इक्वल टू यू माइनस ए इंटू टी, तो यहाँ से एक और इक्वेशन आ गया u और a के बीच में, u इक्वल टू 2.5 है, तो u इक्वल टू 2.5 a को इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 2.5 a का होल स्क्वायर इक्वल टू 50 है, तो इफ यू कैलकुलेट दिस तो यू विल गेट a विल बी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, और 8 को u के जगह हम पुट कर दो तो u कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी भी तुमको निकल गया, वो a का वैल्यू भी निकल गया, इजी था ना। लेकिन ये ग्राफ ऐसा दे दिया और लैंग्वेज ऐसा लिख दिया है कि स्टूडेंट देखेंगे बोलेंगे भाई ये तो मेरे से नहीं बनेगा,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचना, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्यूशन टू चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन ऑफ लेक्चर 7। अ पैराशूटिस्ट बेल्स आउट एंड फॉल्स एंड फ्रीली फॉल्स फॉर 50 मीटर्स। ठीक है, देन द पैराशूट ओपन्स एंड देयर आफ्टर सी डीसेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि जब जैसे पैराशूट ओपन होगा, जैसे इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे जो हम ड्राइंग बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मान लो ए पॉइंट पे ये ग्राउंड लेवल है, ये वाला चीज जहाँ पे सी है, ए पॉइंट पे मान लो वो बेल आउट हुआ। बेल आउट अब कहाँ से होगा? मान लो स्टैटिक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, हेलीकॉप्टर स्टैटिक था, वहां से वो ड्रॉप कर गया, बस नीचे गिर गया, तो बेल्स आउट हुआ, उसी को बेल आउट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आदमी यहाँ से बेल आउट हो रहा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा उस पॉइंट पे? 0। और वो पहले फ्री फॉल कर रहा है, बोल रहा है ना फ्रीली फॉल्स फॉर 50 मीटर, तो 50 मीटर तक मान लो बी पॉइंट तक वो फ्रीली फॉल करता है। ठीक है, तो वो उस टाइम पे तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में रहेगा अंडर। ठीक, उसके बाद वो अपना पैराशूट ओपन कर लेता है, तो पैराशूट ओपन करेगा मतलब इस तरीके से, यही होता है ना पैराशूट बेसिकली। तो पैराशूट जैसे ओपन करेगा तो नाउ इट इज नो मोर अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि जैसे वो बैलून खुलेगा तो वो अपवर्ड थ्रस्ट लगाने लगेगा, है ना, तो क्या होगा, अचानक से इसका वेलोसिटी रिड्यूस करने लगेगा और ये फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं रहेगा, देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन नेट ए। तो वही चीज बताया है यहाँ पे कि वो डिसेलरेट होगा। डिसेलरेट क्यों? क्योंकि ये मतलब ये बैलून जो है वो नीचे जाना चाह रहा है और ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उस पर डिसेलरेशन लगाएगा। इसीलिए यही तो काम होता है पैराशूट का ना। तो मान लो ये एक्सेलरेट करने लगता है, तो कोई आदमी कूदता और पैराशूट खुलता तो उसका वेलोसिटी और तेज होने लगता, तो नीचे जाके गिरता तो वो कितना ज्यादा इंपैक्ट होता, वो मर जाएगा, है ना। तो इसलिए जैसे पैराशूट ओपन होगा तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ अब नेट फोर्स लगने लगा, तो इसलिए अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अब किधर हो गया, ऊपर, और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, नीचे। तो वेलोसिटी अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। समझ रहे हो? मतलब इनिशियली क्या होगा, जब u इक्वल टू 0 से ये जब बेल आउट किया तो इसका वेलोसिटी पहले इंक्रीज कर रहा होगा, कहां से कहां, ए से लेके बी पॉइंट तक वेलोसिटी इंक्रीज किया होगा, फिर बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। डिक्रीज करना भी चाहिए था, डिक्रीज नहीं करेगा तो फिर वो नीचे आके तो मर जाएगा। समझ गए? तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगर ये चीज समझ गया कोई, सेगमेंट वाइज v इक्वल टू यू प्लस जी टी वाला जो फॉर्मूलाज है अपना वो सब लगा लो और ये एकदम तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, अगर इतना कोई समझ गया है तो। देखो, लेट द टाइम टेकन फॉर फ्री फॉल फ्रॉम ए टू बी बी टी वन एंड वेलोसिटी एट बी बी वी वन। मतलब यहाँ पे हम वेलोसिटी निकालनी है क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट के लिए मेरा ये वेलोसिटी जो है दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो y तुमको पता है कितना मीटर गया था, 50 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0, तो बस लगा दो y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे का डायरेक्शन ही पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसको पुट कर दो, u इक्वल टू 0 था तो 50 इक्वल टू 4.9 t1 स्क्वायर, तो t1 यू विल गेट एज 3.19 सेकंड। ठीक है, और ये इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस जी टी में अगेन u इज 0, तो v1 इक्वल टू 9.8 इंटू 3.19 सेकंड, तो यू विल गेट द वैल्यू एज 31.3 मीटर पर सेकंड। v1 कहाँ, यहाँ ये पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, वेरी सिंपल, जो बी से लेके सी तक जा रहा है, तो लेट द टाइम टेकन ड्यूरिंग डिसेलरेशन, उस बीच में डिसेलरेशन हो रहा है, पहले पार्ट में एक्सेलरेशन हो रहा था, राइट, दूसरे केस में डिसेलरेशन होगा ए से। तो लेट द टाइम टेकन ड्यूरिंग डिसेलरेशन फ्रॉम बी टू सी बी टी टू एंड हाइट जो बी सी का दिया हुआ कितना है, मान लो तुम h, ये वाला हाइट ये h है ग्राउंड लेवल से, ठीक है, और ये जब वो ग्राउंड में टकरा रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना हो रहा है, 3 मीटर पर सेकंड। तो ये सेगमेंट जो है मेरा बी और सी के बीच का सेगमेंट है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, इक्वेशन से लगाएंगे तो v1, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड, और उसमें डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन जो हो रहा है, डिसेलरेशन जो हो रहा है वो कितना से हो रहा है, a से बी सी का डिस्टेंस कितना है h, बस अब लगा दो, u इक्वल टू v1 है, v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, a इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो v इक्वल टू u माइनस ए टी, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू 31.3 माइनस 2 इंटू t2 टाइम निकालना है, तो t2 तुम्हारा कितना आया 14.15 सेकंड, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ay। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ माइनस क्यों आ रहा है ये समझ में आया ना, यहाँ पे जो माइनस आया या यहाँ पे जो माइनस आया, ये क्यों आया, अब तुम लोग नीचे आ रहा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी होना चाहिए था, नहीं, क्यों, क्योंकि a जो है, ये जो a है ये डिसेलरेशन है। डिसेलरेशन मतलब क्या है, वो a का डायरेक्शन ऊपर है, तुम्हारा डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव, तो ऊपर का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसीलिए माइनस होगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ay, यहाँ पे भी वैल्यूज पुट कर दो, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 242.7 मीटर्स। कंसेप्चुअली समझ में आ गया, थोड़ा कैलकुलेशन है बट कंसेप्चुअली समझना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए हम तुमको लास्ट फ्री फॉल एक्सेलरेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया था। अब एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन कराने तो कोई फायदा नहीं है,
इसलिए हर तरीके का क्वेश्चन दिए थे, हर तरीके के क्वेश्चन से एक्वेंटेड रहो, ताकि नीट या जेई इससे ज्यादा क्या पूछेगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो अब क्या होगा, ड्यूरेशन इन एयर पूछा था, तो T1 प्लस T2 दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर कितना हो गया 17.34 सेकंड। और फॉल क्या पूछा था, एट व्हाट हाइट डज द फॉल बिगिन, फॉल बिगिन मतलब कहाँ पे वो बेल आउट किया था बेसिकली, तो इट विल बी h प्लस 50 मीटर्स, तो h प्लस 50, तो उसको सॉल्व कर लो, 292.7 मीटर्स इज द आंसर। समझ गए। तो दिस वाज आल्सो वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, बस वही है समझने का फेर है इसमें, ठीक है। चलो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is also, this is also solution to challenge yourself of lecture 7 video. At time t equal to 0, apple 1 is dropped from a bridge onto a roadway beneath the bridge. Somewhat later, apple 2 is thrown down from the same height. ठीक है, मतलब ये मान लो ये रोडवे है और ऊपर में रेलवे का ब्रिज है, मान लो सपोज ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से एक एप्पल को पहले ड्रॉप किए और दूसरे मतलब यहाँ पे यू उसका कितना था होगा ड्रॉप किए, तो यू विल बी 0, और सेकंड केस में उसको थ्रो किए, मतलब उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू देके उसको फेंके हैं, ठीक है। फिगर गिव द वर्टिकल पोजीशंस y ऑफ द एप्पल्स वर्सेस t ड्यूरिंग द फॉलिंग, ठीक है, until both apples have hit the roadway. The scaling is set by ts equal to 2 second. With approximately what speed is apple 2 thrown down? अब हमको एक चीज बताओ, अगर ये ग्राफ है, ये y और t के बीच का ग्राफ है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। ये ts पॉइंट है, ts पॉइंट को कितना सेट कर दिया है 2 सेकंड से, ठीक है भाई 2 सेकंड से सेट कर लो। तो ये चूंकि 8 डिवीजन है यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर एक डिवीजन कितना हो गया 0.25 बेसिकली हो गया हर एक डिवीजन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको बताओ कि इसमें से एप्पल 1 का ग्राफ कौन है और एप्पल 2 का ग्राफ कौन है, कौन बताएगा। बहुत इजी है, ये वाला जो बोल्ड लाइन में है इट इज एप्पल 1 का ग्राफ, और ये जो डॉटेड लाइन में ये एप्पल 2 का ग्राफ। कैसे, लॉजिक समझो इसका। अगर मान लो ये दो ग्राफ दिए हुए थे तुमको, ठीक है, इन दोनों ग्राफ में, और वो भी पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ, अगर हम तुमसे पूछते कि वेलोसिटी बताओ दोनों का एट t इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे, तो तुम क्या करते, t इक्वल टू 0 पे इस स्लोप का टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये टेंजेंट का स्लोप कितना है 0 है, बिकॉज इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सेस, राइट। तो इसका स्लोप कितना होता है 0, तो उसका वेलोसिटी कितना होता है 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है इस वाले केस में, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वो किसका है एप्पल 1 का है, क्योंकि एप्पल 1 को ड्रॉप किया गया था, ठीक है। अब एप्पल 2 का बात करो, अगर एप्पल 2 का वाई और ये पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी बताने बोलते, तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते तो कैसा आता वो टेंजेंट, देखो टेंजेंट ऐसा होता, ठीक है। तो डेट मीन्स इसका स्लोप इज नॉन जीरो, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, राइट। तो स्लोप अगर नॉन जीरो है तो यानी कि वेलोसिटी उसका कुछ है, तो इसीलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ था जब उसको फेंका गया था। और उसको फेंके कब थे, t इक्वल टू 0 पे थोड़ी ना फेंके थे, उसको कुछ टाइम के बाद फेंके ना, समवॉट लेटर, कितने टाइम के बाद, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हमारा कितना है, कैन एनीबॉडी टेल मी, ये एक डिवीजन 0.25 का था, तो 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस, यानी कि ये 1 सेकंड है, दिस इज 1 सेकंड, और ये कितना है 2 सेकंड, और ये कितना है 2.25 सेकंड, राइट। यानी कि एप्पल 2 जो ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, एप्पल 2 कितने टाइम तक एयर में रहा, 1 सेकंड से स्टार्ट हुआ था और 2.25 सेकंड तक हुआ, यानी कि 1.25 सेकंड तक इट वाज इन एयर ऑन एप्पल 2। समझ गए। अब इतना दूर अगर कोई समझ गया इस ग्राफ से तो उसका क्वेश्चन सब बन गया। अब इसमें कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, देखो कैसे, लेट द हाइट ऑफ द रोडवे फ्रॉम द ब्रिज बी एच, कैपिटल एच, ठीक है, टाइम टेकन बाय द एप्पल टू हिट द रोडवे टी एस इक्वल टू 2 सेकंड। क्यों, ये देखो ये तो पहले वाले के लिए ये यहीं पे फेंका गया था ना, यहाँ से ड्रॉप किया गया था, तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और वो t इक्वल टू 2 सेकंड पे आके टी एस इक्वल टू 2 सेकंड पे आके कहाँ पे आ जा रहा है, y इक्वल टू उसका 0 हो जा रहा है, यानी कि वो रोडवे पे गिर जा रहा है। तो फॉर एप्पल 1 u इक्वल टू 0, y इक्वल टू h एंड t इक्वल टू 2 सेकंड, तो ये इक्वेशन लगा दो, y इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u 0 है, ये खत्म हो गया, कैपिटल h इक्वल टू 4.9 इंटू 4, 4.9 क्या है 9.8/2 है बेसिकली वो, ठीक है, इंटू 4, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो h कितना आएगा 19.6 मीटर, मतलब वो जो रेलवे ब्रिज था उससे रोड ब्रिज का हाइट कितना आ गया तुमको ये मालूम चल गया, हाइट इट इज 19.6 मीटर। बस बात खत्म। अब सेकंड पार्ट तुरंत बन जाएगा, लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द एप्पल 2 बी यू मीटर पर सेकंड, जिससे फेंका गया था ये वाला स्पीड बेसिकली, जिससे उसको फेंके थे यू मीटर पर सेकंड से, ठीक है। टाइम टेकन बाय द एप्पल टू हिट द रोडवे कितना है t2, बहुत स्टूडेंट लोग इसमें ये कर लेता है, इसको 2.25 सेकंड लिख देगा, लेकिन वो गलत है। क्यों, क्योंकि ये फेंका ही गया है कहाँ पे, इस पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट,
मतलब t इक्वल टू 1 सेकंड पे तो उसको फेंके थे, t इक्वल टू 2.25 सेकंड तो जीरो से लेके यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे ना, तो ये 2.25 है, तो ये ओवरऑल ये कितना टाइम तक एयर में रहा, 1.25 सेकंड, दैट इज वाई T2 इज 1.25 सेकंड। तो यहाँ पे भी लोग आके इस स्टेप में भी गलती करेंगे, और IIT और नीट में एक ऑप्शन वो भी रहेगा, तो तुम आराम से मार दोगे कि मेरा तो सही है, लेकिन जब बाहर आके क्वेश्चन मिलाओगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा गलत है, और नेगेटिव मार्किंग तेरे रैंक को 400-500 रैंक तो आराम से नीचे ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए कंसेप्चुअली एकदम सही रह के बनाना है, चीज़ों को देख समझ के, ठीक है। तो T2 तुमको मालूम है, तो y इक्वल टू अगेन लगा दो, y इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, यहाँ पे u निकालना है, y कितना है 19.6 जो अभी कैलकुलेट किया था h, और इक्वल टू 1.25 u, ठीक है, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये सब वैल्यू मालूम है तुमको, t का वैल्यू मालूम है, सबको पुट कर दो तो u का वैल्यू कितना आएगा 9.6 मीटर्स पर सेकेंड, तो दिस इज द आंसर, ठीक है, समझ गए। तो दीज वेर द सॉल्यूशंस टू द चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन, है ना। चलो, तो फ्रेंड्स विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन चैप्टर कंप्लीटली। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने करवाए हैं इसमें, ठीक है। नाउ इट्स योर टर्न, तुमने IIT जेई नीट जेई और नीट का भी क्वेश्चन देख लिए लास्ट के 2 इयर्स का, उसका भी सॉल्यूशन हम बता दिए हैं। बाकी ओवरऑल भी चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे इसमें, सब वर्थ अंडरस्टैंडिंग है, सब वर्थ मेकिंग क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। अब तुम्हारा ये काम है कि तुम या तो प्रीवियस ईयर्स का IIT और नीट का क्वेश्चन को सॉल्व करो पैरेलली, यू ट्राई टू सॉल्व एनी अदर बुक। अब बहुत ज़्यादा बुक्स में तो जाना नहीं है, तो आइदर यू सॉल्व SC वर्मा और यू सॉल्व हेलिडे रेसनिक वॉकर, कोई भी एक बुक पकड़ लो, उसी को सॉल्व करो। तो तुम आराम से बैठ के SC वर्मा को सॉल्व करो, जो काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चन है, एंड आई बिलीव कि तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो हमने जितने भी कंसेप्ट दिए उससे तुम्हारा क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। And next video lecture will be on kinematics in 2 and 3 dimension, and which will be released very soon. Till then, have a good time learning physics. Bye for now. Thank you. Bye.